Hello everyone. I Tariq Sabah, STNC National Middle School Parsaba. Welcome you all into the in-house training session. The topic for today's training session is Annual Prayer School and the name of resource person is Miss Sanal. So I would like to invite welcome Miss. Good afternoon, Principal Ma'am, Director Sir, and everyone. I am very much grateful to them who have given me such a great opportunity to present in front of you all about the topic anger preschool. This topic is relevant because everyone gets angry, and those who are really angry in the class, this will help you to control your anger. In today's life, being angry is a normal activity. Sometimes it is good, but sometimes it is bad also. For a student, anger can never be a good thing because it affects the mental, physical, and academic achievements of a student. So we shall know about anger, its symptoms, and techniques of anger management during this session. Anger is one of the basic human emotions as elemental as happiness, sadness, anxiety, or disgust. So, what exactly is anger? There may be different definitions of it, but I have something which is very simple for you here. Anger is a strong feeling of aggravation or irritation towards or about something. You might experience a real feeling of irritation and frustration on somebody or something which can really put you in the wrong direction. So anger is that feeling where you really want to lash out to people because of the fact that you are so angry and upset with them. Anger can give you a way to express negative feeling or motivate you to find solutions to problems. But excessive anger can cause problems. So there is a beautiful quotation which is on anger, which goes like, holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die, which was mentioned by the famous Buddha, Gautama Buddha, and he mentioned it saying that it's not about you and you are angry. It's like expecting that you have drunk poison and the other person is expected to die. So hence, it is very important to control your anger. यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहती हूँ। आप में से कोई ऐसा शख्स है जो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपको क्लास में जब कभी गुस्सा आया हो? एनीवन वांट्स टू शेयर? Good afternoon, ma'am. I would like to share my experience in IFS during class session. एक बच्चा है, वो क्लास में हम कोई टॉपिक उसको समझा रहे हैं, तो वो टॉपिक हम उसको बार-बार रिपीट करके समझा रहे हैं, 3 बार 4 बार। उसके बाद भी वो नहीं समझ पा रहा, तो
सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ और वो बच्चा भी परेशान हो जाता है। कह सकते हैं कि एंगर का जो फर्स्ट स्टेज है वो उसका कुछ लक्षण आने लगता है। तो वैसे सिचुएशन से कैसे हम उसको कन्विंस करें या फिर हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि ये सिचुएशन से हमको निकलना है यहाँ से। So is this your experience? Or you have asked question? You are writing question there. You don't share your experience. Actually, ma'am, I wanted to share it that वो जो मोमेंट था तो वो मोमेंट थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव कर दिया। तो इस तरह का और भी एक्सपीरियंसेस क्लासरूम में मैंने फेस किया है जहाँ पे बच्चे आप उसको उसके यूनिफॉर्म को लेकर के उसके सिलेबस को लेकर के आप उसको कन्विंस करना चाहते हैं लेकिन वो बच्चे मानते नहीं हैं। तो वो सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे हम कई बार एग्रेसिव हो गए। Thank you, sir, for sharing your experience. Now it's time for causes of anger. So there are many reasons which cause anger, and these causes are different from individual to individuals. The first one is personal factors. Personal factors, this can include the biological composition, anger experiences, anger related memories and images, and personality traits. Students who have excessive nerve cells will show high intensity of anger as compared to students who have lower rates of excessive cell function. Similarly, students who have aggressive parents experience threats and severe punishment from teachers may have vivid memories of anger and revenge. Anger related thoughts and memories include anger events, people or situations. Students who have experienced hurt, rejection, pain and frustration may form negative beliefs and attribution regarding others, situations and world around them. This belief can trigger and increase the intensity of anger in day-to-day life. हमारा सेकंड फैक्टर है एंगर के काउज का, वो है फैमिली एटमॉस्फेयर। फैमिली एटमॉस्फेयर का भी काउज ऑफ एंगर में एक बड़ा कारण है। बच्चे घर का माहौल देख कर के भी एंग्री और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कि माँ बाप के बीच की आपसी कलह, भाई भाई का झगड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इस मॉडर्न एरा में माता और पिता दोनों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्नेह दे सके, ममता दे सके, केयर दे सके, प्यार दे सके। और ये सब जो कमी है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर समा जाती है और बच्चा इन सब चीजों के कारण एग्रेसिव हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जो फैमिली एटमॉस्फेयर है काउज ऑफ एंगर का, वो एक सबसे बड़ा कारण है। और थर्ड वन इज सोशल फैक्टर। टीचर एंड पीयर रिलेशनशिप, मीडिया इन्फ्लुएंस, social settings and school atmosphere can also increase anger, thoughts and behavior in students. Teachers who are considered as role model for students can also sometimes trigger intense anger in students through abusive language,
physical punishment, and showing favoritism in classroom atmosphere. Students may be placed at risk of anger if academic failure or a lack of academic competence is experienced. Academic letdown may amplify the feeling of negative response or non-acceptance, and as a result, influence the possibility of an angry thoughts and emotional state. Finally, remember that anger itself is neither positive or nor negative, but students need assistance in reducing or redirecting their anger for better physical, psychological, and academic achievements. यहाँ पे मैं एक दूसरी एक्टिविटी करना चाहूंगी। यहाँ पे आप सभी को एक पेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, आपको बताना है कि when do you get angry and how do you banish your anger. Very slow. आप Take 5 minutes. इसमें लिखिए 5 कारण लिखिए कि आप गुस्सा क्यों होते हैं और आप अपने गुस्से को काबू कैसे करते हैं। Komal, sit properly. Do it within 2 or 3 minutes, please. No, at least take 5 minutes. Better for you. It's a task of 5 minutes. Okay, I'll give you 5 minutes. Everybody try to write any something. You have to write why do you get angry and how do you banish your anger. आप अपने गुस्से को किस प्रकार से काबू करते हैं। You have to write 5 points. I mean to say, which techniques do you apply when you get angry? Means, you do yoga or exercise. Mr. Rajendra Pandit have a best example to share his idea. Right now he is going to be younger. Sarnaj will also share at least one idea for everyone after collection of this one. One idea how when do you get angry and how do you manage your anger? At least you have to spend I think 10 minutes for this.
Just collect it. That is Yes, ma'am. okay. This collect it. Reviews of all of them. आप सभी का धन्यवाद इस एक्टिविटी को करने के लिए। और मुझे आप लोगों का एक्सपीरियंस पता चला कि आप भी गुस्सा होते हैं, और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि गुस्सा होते हैं इसके साथ साथ गुस्से को काबू करना भी आपको आता है। और मुझे यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिला है इस पेजेस में। तो गुस्सा में इसके लिए कोई बात नहीं, बट गुस्सा को काबू करना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपके लिए ताली। और आई थिंक मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। तो anger is often referred to as a wind that blows out the lamp of the mind। इस बात को हम इस कहानी की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हम सब के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपने पे बेअर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं।
तो ये कहानी भी एक साधारण परिवार की है जिसमें सोनू नाम का एक लड़का रहता था, पर हर बात पे उसे गुस्सा आ जाया करता था। छोटी छोटी बात पे वो कभी अपने दोस्तों पे, कभी अपने माता पिता पे, तो कभी कभी आस पड़ोस में उसे हमेशा वो चिल्लाता रहता था, गुस्सा होता रहता था। उसकी इस हरकत से सारे लोग परेशान थे। तो एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि किसी ना किसी तरह से करके मुझे अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है। इसीलिए उसने अपने बच्चे पर एक प्रयोग करने के बारे में सोचा और उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसे एक हथौड़ी और एक कील का डब्बा दिया और उसको ये कहा कि तुमको एक काम करना है बेटा, आज से तुम्हें जितनी बार गुस्सा आएगा आप अपने हथौड़े से उतनी बार कील को फेंस पे ठोकिएगा। अगर गुस्सा एक बार आए तो एक बार, दो बार आए तो दो बार, दिन भर में जितनी भी बार आए आपको कील को उतनी बार फेंस पे ठोकना है। तो बच्चे को पापा की यह बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन मन ही मन में थोड़ा खुश भी था, ये सोच करके कि पापा ने उसे कम से कम गुस्सा होने से मना नहीं किया। और इसी बात को सोचते हुए वह दूसरे दिन से उस प्रयोग को पूरा करने में लग गया। पहले दिन उसे 8 बार गुस्सा आया तो उसने 8 बार नेल को पेन पे ठोका और दूसरे दिन उसे 12 बार आया तो उसने 12 बार कील को ठोकी। इसी तरह से करते करते उसे जितनी बार भी गुस्सा आ रहा था वो कीलें ठोकता चला जा रहा था। कुछ दिन बीतता चला गया और फिर सोनू को एहसास होने लगा कि यार ये तो काम बड़ा उबाऊ है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब थक चुका हूँ कीलें ठोकते ठोकते। मुझे लगता है कि अब अपने गुस्से पर ही काबू करना होगा। तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे नेक्स्ट डे से अपने गुस्से पे काबू करना है ताकि मुझे कम कीलें ठोकनी पड़े। इसलिए नेक्स्ट डे उसने अपने गुस्से को कम किया और उसने गुस्से को कम किया। उसे पहले दिन उसे 4 बार गुस्सा आया तो उसने 4 बार कीलें ठोकी, 2 बार आया तो 2 बार, और एक दिन ऐसा आया कि उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया और उसने एक भी कील फेंस पे नहीं ठोकी। तो वो बहुत खुश हो गया और इस बात को लेकर के वो अपने पापा के पास गया और बड़े खुश होकर उसने अपने पापा को ये सारी घटना बताई कि पापा मुझे आज कोई गुस्सा नहीं आया। तो पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें भी काफी खुशी हुई और अपने बेटे को शाबाशी दिया और शाबाशी देते हुए यह कहा कि बेटा तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा टास्क यहीं खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें मैं एक और टास्क दे रहा हूँ जिसे तुम्हें करना है। उसने फिर पिताजी ने बेटे सोनू को कहा कि तुम्हें करना ये है कि तुमने जितने भी कीलें ठोकी है अब तुम्हें वो वापस निकालनी है। तुम्हें चाहे उसको निकालने में जितना भी समय लगे लो, लेकिन उसको फिर को वापस निकालो। तो सोनू फिर दूसरे दिन से इस टास्क को करने में लग गया और उसने एक एक करके सारी कीलें निकालनी शुरू कर दी। और एक दिन फिर ऐसा आया कि उसने सारी कीलें पेन से निकाल ली और उसके बाद फिर वो खुश होता हुआ अपने पिताजी के पास गया और ये सारी बात उसने पिताजी को बताया कि पापा मैंने अपने दूसरा टास्क भी खत्म कर लिया है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि वेल आपने अच्छा किया बेटा, लेकिन मुझे कुछ आपको दिखाना है। और उसने अपने बेटे को हाथ में लेकर उसे फेंस तक ले गया और उसके पिता ने उस बच्चे को फेंस की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा तुमने सारे कील निकाल तो दिए हैं, लेकिन इस फेंस में हुए होल की तरफ तो देखो बेटा, जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जो कभी समान नहीं हो सकते। यह फेंस की लकड़ी
प्रतीक है कि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पर हम अपने गुस्से की एक कील ठोक देते हैं। फिर वह वक्त से या फिर माफी मांगने से वो कील निकल तो जाती है, लेकिन उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे गए कड़वे शब्द को भी कभी भुला नहीं पाते। तो इस बात से सोनू को भी समझ आता है कि वो आज तक इस गलती पर था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचाते हैं। गुस्सा में बोले गए ये शब्द उतने ही दर्दनाक हैं जितने कि हमारे शरीर में कोई घाव। वे हमारे दिल में हमेशा के लिए रहते हैं। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया करके अपने गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा भी आए तो मैनरली निकालें ताकि उसका प्रभाव दूसरे पर ना पड़े। हम गुस्सा तो निकाल देते हैं, लेकिन गुस्से को हम पहचानेंगे कैसे कि हम सामने वाला शख्स को बुरा लग गया है और वो गुस्सा हो गया है। तो इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं। तो अब आपको मैं सिम्टम्स ऑफ एंगर बताऊंगी। So I'm sure you would have experienced symptoms of anger. So what happens to individual when they are feeling angry? You will notice certain symptoms like, first one is clenched jaw or fist. आपने देखा होगा कि जब किसी को गुस्सा आता है तो चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव से आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि सामने वाला शख्स को गुस्सा आ रहा है। और इन सब के अलावे कभी कभी लोग गुस्से में, किसी को आदत होती है कि गुस्से में वो अपने फिस्ट को मुट्ठी में बांध लेते हैं। ये एक सिम्टम्स है जो ऑटोमेटिक, जब आप गुस्सा होंगे तो आप अपने मुट्ठी को बांध लीजिएगा या फिर आपके चेहरे का हाव भाव चेंज हो जाएगा। सेकंड है रेड एंड फ्लश्ड फेस। Red and flushed face shows that person is really angry. जिस तरह से हम जब गुस्सा होंगे, गुस्से में चेहरा हमारा एकदम लाल हो जाता है, हमारे नाक के पास, हमारे गाल के पास। तो ये एक सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं। और गुस्से में सिर्फ हमारा चेहरा ही लाल नहीं होता, गुस्से में हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। and it is also symptoms of getting angry and shaking. When you are shaking too much, when your body shakes, when your hand is shaking, and you actually feel like you are literally vibrating as a person, it means you are getting angry. So feeling hot in the face or in the neck area because your body temperature rises, that leads to a person looking like the symptoms of anger. So these are basic symptoms through which we can identify a student who is getting angry. So there is a beautiful quotation which says that anger is one letter short of danger. So as a danger is a very dangerous word, in the same way anger is nothing but one step closer to danger. So hence it becomes important not to get into the danger zone, but to make sure that you are in your calm and composed zone, so that you don't get into angry mood. गुस्सा हो गया, हम लोगों ने सिम्टम्स भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुस्से का नतीजा क्या होता है, क्योंकि गुस्से का अगर हमें नतीजा पता चल जाए तो शायद गुस्सा करने से पहले हम लोग 10 बार सोचेंगे। सो कुछ रिप्रोडक्शन ऑफ एंगर है जो मैं बताना चाहूँगी। एंगर कैन रियली ruin you, and hence it becomes important to let go of this. They can be serious repercussion of anger
For example, hurt your health. Anger hurt our health badly. Whether it is our physical health or mental health, it affects them equally. एंगर का हमारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और वो लोग जो छोटी छोटी बात पर हमेशा गुस्सा होते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हेडेक, इंसोम्निया, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर। इन सब बीमारियों की शिकायत अक्सर ऐसे लोगों से होती है जो बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना ही जानते हैं, उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानते। एंगर का निकलना एक और होता है कि एंगर डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, whether relationship at home or relationship in your professional career. If you are who gets angry, it can destroy relationship, no doubt. Anger हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने का भी काम करती है। कई बार हम गुस्से में अपने को कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका जख्म सॉरी कहने के बाद या समय बीत जाने के बाद भी कभी ठीक नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा है कि आप अपने गुस्से को और अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। Anger can make you lose your focus because you are not able to think properly, you are not able to solve problems, and hence anger can actually not make you focus. So these are some certain repercussions of anger which tells you it is very important not to be angry, else you can face with all of these. So अब हम कुछ एंगर मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। So what is anger management? Anger management is the process of learning how to recognize signs of anger and taking action to calm down and deal with the situation in a positive way. For creating an anger-free school, the involvement of all stakeholders such as students, teachers, non-teaching members, parents, and community as large is extremely crucial. एंगर मैनेजमेंट में हम सबसे पहले एक विद्यार्थी की भूमिका को निभाएंगे। इसमें हम बताएंगे कि एक विद्यार्थी किस तरह से अपने एंगर को मैनेज कर सकता है। Students can do following for an anger-free school. Students must identify the root cause and put into words so that they can act rather than react. It means वैसे बच्चे जो 13 और 14 के बीच होते हैं, वो उन बच्चों का जो एज होता है वो ग्रोइंग एज होता है। वो तो ग्रोइंग एज में बच्चे समझदार होते हैं, तो उन्हें भी यह समझना होगा, उन्हें भी कोऑपरेट की भावना को लेकर चलना होगा, उन्हें खुद को जांचना होगा कि वे ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें यह जानना होगा। उन्हें यह जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है।
परिस्थिति में उन्हें किस तरह से संभालना है, उसे यह समझना होगा। मान लिया यदि किसी बच्चे ने उसे उकसाया, तो वह अपने आप को उस सिचुएशन में किस तरह से रोके, उसे इसके लिए ध्यान देना होगा कि हमें अभी रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि एक्ट करना है। हमें यह सोचना है कि हम जो इतना गुस्सा हो रहे हैं या गुस्सा होने वाली स्थिति भी है या भी नहीं। जब बच्चा इन रूट काउज को पहचान जाएगा तो वह ऑटोमेटिक अपने एंगर को मैनेज करने में भी सफल होगा। एंड इफ द सिचुएशन इज worth getting, your reaction learn to resolve conflict in a positive way। और कभी-कभी क्या होता है कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाता है और बच्चा उस चीज पे एक्ट करने की जगह अगर रिएक्ट कर देता है, तो कभी-कभी बच्चे क्या होते हैं, जब एकांत माहौल में बैठे रहते हैं तो अकेलेपन में वो उनसे वो बातें याद करते हैं जो उन्होंने गुस्से में निकाली थी, और तब उन्हें पछतावा होता है कि आखिर उसने जो उस दिन रिएक्ट किया था वो एक गलत था। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बच्चे को रिएक्ट करना है तो पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में नहीं। एंड द थर्ड anger management is for students, stay calm by taking care of your health, overall health, mental and physical well-being can help diffuse anger. Practice relaxation techniques such as meditation, develop hobbies, practice gratitude and so on। अब हो गई, हम लोगों ने छात्र की भूमिकाओं को तो जान लिया, लेकिन स्कूल में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है शिक्षक की। अब हमें शिक्षक की भूमिकाओं को भी जानना होगा कि एंगर मैनेजमेंट में उनकी क्या भूमिका है। Teachers to prevent condition in the classroom that are likely to induce frustration and or anger। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन किस तरह की पढ़ाई? पढ़ाई नहीं कि टीचर आए, लेक्चर दिए, ज्ञान दिए और चले गए। बच्चे वहाँ पे जॉयफुल लर्निंग के लिए आते हैं, ना कि सिर्फ शिक्षक ने जो पढ़ाया उसको सुनने के लिए। तो शिक्षक का काम सिर्फ लेक्चर देकर निकल जाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना भी है, उन्हें क्लास में जॉयफुल लर्निंग देना है। अगर टीचर को चाहिए कि वह अपने बच्चे पर गुस्सा ना हो, क्योंकि जब टीचर बच्चे पर गुस्सा करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डेमोरलाइज हो जाता है। अतः उसे लगता है कि सर जो है या मिस जो है वो मुझे दूसरे बच्चों के सामने डेमोरलाइज कर रहे हैं, और फिर बच्चे के अंदर उस टीचर के प्रति अच्छी भावना नहीं पनपती। तो उनके मन में आपके लिए कोई भी बुरी भावना ना हो, इस तरह से टीचर को अपने आप को स्कूल में प्रेजेंट करना है। कभी-कभी क्या होता है कि शिक्षक क्लास में जब गुस्से होते हैं तो वैसे बच्चे से वे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिससे उनका आंसर नहीं पता होता है, ताकि वो बच्चा जो है क्लास में एकदम चुप हो जाए, चुपचाप से बैठ जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास 5 के बच्चे से मैंने क्लास 7 की क्वेश्चन पूछ दिए, तो हम उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो
हमें क्लास 7 का आंसर दे दे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बच्चे को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है वैसे क्वेश्चन पूछ करके जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए और आपके क्लास में उन्हें बैठने में मजा ना आए। इसीलिए आपको अपने क्लास को जॉयफुल लर्निंग देना है। Teachers to manage emotions in a positive state. Before facing a class, they should have smiling face. They should be calm and relaxed. Seeing teachers, children will be happy, joyful, and energetic. Compliment the child when he or she demonstrate problem solving or anger management techniques. Because compliment give them happiness, excitement, courage, hope and confidence. Now fourth one is teach. Teachers should teach basic anger management techniques like yoga, exercise, deep breathing and so on. यहाँ आप लोग एक और एक्टिविटी करनी होगी। आप लोग आई थिंक बैठे बैठे थोड़ा सा उब गए होंगे, तो सोसाइटी में कि आप लोगों से एक एक्टिविटी करवाई जाए। एट फर्स्ट घबराई नहीं, इसमें आपको लिखना होना कुछ भी नहीं है, आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले आप काम डाउन हो जाइए, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भारी काम नहीं है। ये जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, इस एक्टिविटी को रोज एंड कैंडल ब्रीथिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें आपको एक्टिविटी, आपने गुलाब का फूल देखा होगा ना, गुलाब का फूल हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, पसंद करते हैं, और जब बहुत ज्यादा ही पसंद आता है तो स्मेल भी करने लगते हैं। स्मेल कैसे करते हैं? यस। और उसके बाद जब हमें कैंडल को बुझाना होता है तो उस समय हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही एक्टिविटी आपको मेरे साथ करनी है, और वो भी 3 टाइम्स। सो प्लीज डू इट विथ मी। कीजिए धीरे 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 धीरे। योगा ही एक्सरसाइज है, इसको आप गलत तरीके से कीजिएगा तो इसका इफेक्ट भी गलत होगा। तो योगा है, एक्सरसाइज है, तरीके से कीजिए। कीजिए। वन, टू, थ्री। Now relax. अब जरा कोई एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनको किस तरह को फील हुआ? एनीवन? कोई रिलैक्सेशन हुआ आप लोगों के अंदर? आई होप हो गया होगा, एंड दिस एक्टिविटी विल रियली हेल्प यू इन योर फ्यूचर। अब बारी है स्टाफ एंड फैमिलीज की, जो एंगर मैनेजमेंट में, वो भी एंगर मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कैन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेक स्कूल एंगर फ्री जोन। स्कूल मैनेजमेंट कैन डू फॉलोइंग: एक्नॉलेज दैट एंगर कैन बी परफेक्टली नॉर्मल, emphasize that anger can be expressed emphasize that anger can be expressed in a calm and respectful manner. यदि आपको गुस्सा आ भी गया है तो उस गुस्से को थोड़ा मैनरली प्रकट कीजिए, ताकि जो गुस्सा आप सामने वाले शख्स पर निकाल रहे हैं उसका उसमें कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। Families can make their children to differentiate between anger and aggression. The two are similar and may occur together. Anger may result from frustration, whereas aggression is a negative act intended to hurt someone. Staff and families के बाद एक और है स्कूल
जिन्हें स्कूल में सारे बच्चों को देखना होता है। तो स्कूल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि हमारे स्कूल को एंगर फ्री रखने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाएं, जिसमें है पहला लिसन टू मी बॉक्स। आप लोगों ने लिसन टू मी बॉक्स का नाम सुना होगा। लिसन टू मी बॉक्स should be used in school for staff and students so that they can freely express their concern. And the second one is a committee should be organized for addressing complaints for displaying of anger in the school premises. Students who resolve the conflicts related to anger using anger management techniques should be praised and rewarded. स्कूल मैनेजमेंट को स्कूल को एंगर फ्री बनाने के लिए इन सब के अलावा जो सबसे अहम भूमिका है वो ये है कि उन्हें बच्चों को मेडिटेशन करवाना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इन सब के अलावा हमारे स्कूल में जो सुबह असेंबली के दौरान जो प्रेयर करवाया जाता है बच्चों से, उसके बाद बच्चों के लिए पीटी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन पीटी की व्यवस्था से बच्चों के अंदर खुशी आती है, वो बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, उसके बाद स्कूल के माहौल में वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। इन सब के अलावा स्कूल को अपने परिसर में बोर्ड लगाना चाहिए, इस प्रकार का बोर्ड जिस पर लिखा होना चाहिए कि यह क्रोध मुक्त क्षेत्र है, दिस इज एन एंगर फ्री जोन। तो बच्चों को तनाव मुक्त माहौल देने के लिए बेहद जरूरी है कि स्कूल पूरी तरह से एंगर फ्री जोन रहे। टीचर हो या अभिभावक बच्चों की किसी भी बात का जवाब मुस्कुराते हुए देना चाहिए ताकि उन्हें गुस्से के माहौल से दूर रखा जा सके। नाउ अब मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। Now I would like to conclude by saying that anger itself is in order and normal. It's okay to get angry. However, excess amount of anger and excessive and uncontrollable anger is something which looked as destructive. Hence, please do control your anger. Learn how to meditate. Practice yoga, which will help you to become a little calmer as a person and also make you away from all the anger that is ruining your life. Thank you. I hope you enjoyed this wonderful training session on Anger Free School. Please do not get angry. Make sure that you are able to manage your anger. Now, thank you all for listening to me passionately throughout this session. I am very grateful to you all and my technical supporters. So thank you very much. Have an anger-free zone life. Thank you. Thank you, Miss. It was a wonderful session. Now, participants, you can ask your question to our instructors. गुड आफ्टरनून मैम। आप जैसा कि बताएं हमें इस सेशन के बारे में एंगर फ्री स्कूल, ठीक है, तो आपका ये सेशन बहुत अच्छा था। बस हमें ये जानना है कि हम जब अपने क्लासरूम में जाते हैं तो फिर बच्चे वहाँ पे बहुत सबसे पहले तो हम अपने क्लास में जाते हैं तो उसमें बच्चे बहुत शोर करते हैं और ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो हमको बिना मारे, बिना पनिश किए हुए, बिना उसको आँख दिखाए हुए हम उसको कैसे अपनी बात को मनवा सकते हैं और हम उसको बिल्कुल पनिश नहीं कर सकते, जैसा कि आपने बताया।
कि बिल्कुल एंगर फ्री रहना है। थैंक यू मैम फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और मेरा आंसर है कि एज आई टोल्ड यू मीन्स हमें स्कूल को एंगर फ्री बनाना है। उस हिसाब से अगर आप अपने स्कूल में या फिर अगर स्कूल में नहीं है, अगर आपने अपने क्लास को एंगर फ्री बनाया है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी और बच्चे उस तरह के शोर शराबा या उस तरह की नेगेटिविटी क्लास में नहीं करेंगे जैसा कि आपने कहा है। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शोर शराबा करते हैं या फिर होमवर्क वगैरह कंप्लीट नहीं करते, चाहे आप उसको कितना भी समझा लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आप खो दे। अगर आप सही रहेंगे तो बच्चा भी सही रहेगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद अपने पे भी किया है। एक बच्चे को मैंने बार बार होमवर्क देती थी, वो बच्चा करता नहीं था और उस पर मैं गुस्सा हो जाया करती थी कि तुमने होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाया। जब मैंने देखा कि गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है तो मैंने सोचा मैं अपने आप को ही काम डाउन कर लेती हूँ। तो जब काम डाउन होके आप बच्चे को समझाइए कि बेटा आपने ये वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या कारण है, रात में सो गए थे, चलो कोई बात नहीं, देखो तो तुम्हारा बगल वाला जो फ्रेंड है कितना अच्छा होमवर्क किया है, उसने सब कुछ याद रख लाया, तुम्हें भी आगे बढ़ना है ना, तुम्हें भी आगे बढ़ना है कि नहीं। तो ये सब मोटिवेशन, ये सब बातें जिससे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, ये सारी बातें बच्चे को बताइए ताकि बच्चा आपकी बात को सुने और समझे और पॉजिटिव लाए। थैंक यू। Thanks again miss, for this wonderful session. This is very valuable because we as a teacher face many problems in our life and classroom which make us angry. But after today's training session, I hope we are able to manage our anger. Now participants, you have your feedback form, assessment form. You have to fill it. Thank you.